Hi everyone, how all you are? I hope you all are good and fine, and each one of you is very uh, hearty and healthy, right? So, yeah, after 1 month, yeah, after 1 month, we are going to look at to our work. We are going to come back with our work, okay? And sorry for being so late and lazy. Actually, I was not lazy. uh, there was some guest in my house from so many time. Okay, so that's why I didn't make any video. Okay, now uh, being the presence of guests and you are making such types of videos, it's a little awkward according to my opinion. Okay, I'm saying according to my opinion, that's why I didn't make any such video. Okay, which take a long time. Okay, suppose this video it will take 1.5 hour approximately, right? So I didn't make any such video, any such thing which take my that much time, that the guests, they ponder that they are not attending on us. Okay, they are not paying any attention on us, right? So there are many factors, many reasons of being so late. Okay, but don't worry, I'm back now, and now we are going to see Macbeth, Prism Rhapsody, and our English grammar syllabus as well. Now today's topic, it's apart from ISC. Yup, I've never seen these types of questions, these types of particular thing in our English paper, neither in grammar nor in literature, right? But some of you, not some of you, one of you, okay, one of you had comment me that please sir made the a lecture on synonyms, antonyms, and some good phrases and idioms, right? Idioms and phrases. So, yep, guys, here is your recommended, your very eagerly waiting video. Okay, and in that comment, he has written, I don't know he or she, but that person had written that which are necessary, which are required, which are needed for ISC. Guys, make sure you do not deviate from your own point. Okay, ICSE never asked these types of questions like synonyms, antonyms. These were in your lower grades, not in your that high grade. Okay, this is your 12th class. You need to go according to your 12th syllabus. This, yep, in literature there could be a question like this, but not on this particular thing. There could be a question that elaborate your thoughts on this meaning, or in language there could be such questions like write in composition part, that write about this particular phrase, explain it, like this types of questions. Not particularly this question that please what tell me what's the meaning of this phrase, what is the meaning of this idiom. This is not a question. Okay, this is a question of your CBSC. Okay, this is a question of your CBSC and your competitive examinations, very important. So this question, okay, of idioms and phrases, okay, this is not for your ISC or ICSC, but this is for your CBSC and your competitive examinations more specifically. Guys, in your competition exams like of your SSC and the banking types of where English is necessary, English is mandatory, there you will see these types of questions like of idiom, phrases, antonyms, and synonyms. These are idioms and phrases. Very soon we are going to see antonyms and synonyms as well. Okay, so yep, let's start. Right now I had a great sleep. That's why my voice is like this. Sorry for that. And sorry for this inconveniency as well of this creepy sound, which will never be improved. Okay. So I hope now this much
chit chat is enough for today. Now let's go for our idioms and phrases which are very important for your competitive examination more specifically. Okay, so if you are a student of a competitive exam, please refer this video. If you are a child of like a student of ISC or ICSC, you could not you could visit over there if you are very like willing, or if you like, you could visit. These are very important and interesting as well. Okay, but ICC never asks these types of questions. Okay, so make sure you're clear with your syllabus. Okay, it is very important that you should clear with your syllabus. So last time we have completed our act 3 of Macbeth. Now we are going to see either our poetry or prism. Okay, or we shall go with our Macbeth only. Who knows? Okay, so let's start. Yep, today we are going to see idioms and phrases. Here you could see few idioms. Cool as a cucumber. Okay, cool as a cucumber. Hold your horses. Walking on air. Godly two shoes. The elephant in the room. Bring home and back on. Jack all trades. Playing with fire. Draw a line. Ring a bell. These all are called idioms. Okay, these all are called phrases basically. Okay, idioms are something which are like this. Okay, I bring idiom and phrases both. Okay, so pay attention now. Idiom is a way of expression of your thoughts. Okay, मतलब आप किस तरीके से अपनी चीज़ों अपनी बात को एक पर्टिकुलर वे में, एक स्ट्रेंज वे में बताना चाहते हैं, वो उसी को हम क्या कहते हैं, ईडियम. ओके, इट इज़ अ स्पेशल मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग ओके a number of words, a couple of words in your own particular language, in your own strange language. नहीं समझ आया? ओके, लेट मी टेल यू. देखिए, for instance, let me take one of these example, like hold your horses, very frequently asked, right? You all know, I think, hold your horses. I could also say please wait. Okay, please wait, have patience, right? I could also say, but instead of this, please have patience, please wait, I'm saying hold your horses. It is looking little like interesting, right? It is a very strange type of language. Okay, and it is interesting as well. So idiom is nothing but it is a special mode of expressing your thoughts, your thinking, your special talk. Okay, एक स्पेशल तरीका होता है अपनी बात को रखने का. Okay, अब जैसे I said hold your horses. So if someone by mistake, if someone don't know the meaning of this idiom, he will ponder that what you are saying, what the rubbish you are uttering from your what the rubbish you are uttering from your dustbin. Just kidding. He will think, or he or she will think like this only. Okay, but if that person know that hold your horses means to wait, to have patience, then he will surely appreciate your speaking skill. So this is nothing but a way of speaking in a very advanced way, in a very particular way, but yet in a very exciting way. Okay, if you say something and the person in front of you knows the meaning of this idiom, he will appreciate you, that what kind of this special thing you have used. He or she will surely appreciate you. That's why we use idioms and phrases. Phrases are also same. Okay, just the difference between idioms and phrases are, idioms are little short, phrases are lengthy. अरे जो हिंदी में हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहते हैं ना, सेम वही है ये. ओके, idioms मीन्स लोकवाक्य और phrases मीन्स हमारा जो वो होता है, idioms means मुहावरे and phrases means लोकोक्तियाँ. Okay, so one of the same thing. Let's get started with the first idiom, and the first idiom says under the weather.
Now please guys look at these images, because these images will give you a very, some images will give you a clear idea of the world of this idiom, and few images will give you like a pseudo, a false idea. Okay, so please, before seeing the meaning, please first look at this image, glance over this image, and just question to yourself that what could be the answer, what could be the answer without looking this. This is called a true study. If you do true study, you will get the more sweet and more ripe fruit. Okay, so yeah, under the weather, नाम से ही पता चल रहा है, by the phrase you could tell that it is something which is ill or getting cold. So the meaning is feeling ill or getting cold. Okay, under the weather का मतलब क्या है? Feeling ill or getting cold. Okay, so अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें तो कैसे यूज़ करें? I am feeling a bit under the weather means I am not feeling well. I am having a cold. I am ill. ये दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके लिए यूज़ करते हैं आप बीमार हैं, हाँ, या आप यूज़ करते हैं कि आपको ज़ुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है. वैसे दोनों ही बीमार होते हैं. ओके, तो अंडर द वेदर, आई होप आपको पहला ईडियम समझ आया होगा. ओके, दैट दिस इज refers to some illness or a cold. Okay, so the sentence is I am feeling a bit under the weather, मतलब I am not well, I am sick. ठीक है, तो पहला आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट क्या है? कोल्ड फीट. सी, few are very common, you know, that's why I write frequently asked, मतलब they are frequently asked. You know, you have heard these phrases once in your life. Okay, so there is no very hard and fast rule that these are very tough, how will I learn? No, you know these things, and just I am recalling these things. Okay, that जैसे under the weather, you must know this phrase. Okay, तो इसका मतलब क्या होता है? बीमार हो जाना या खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना. तो सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. नेक्स्ट क्या है? कोल्ड फीट. पिक्चर देखिए, पिक्चर से आपको खुद समझ आ जाएगा. देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये जो बॉय है, ही इज़ बिट नर्वस. ओके, थोड़ा सा नर्वस है, ही शिवरिंग. ओके, काँप रहा है, नर्वस है तो काँप रहा है. तो दैट्स कोल्ड फीट का मतलब ही क्या होता है? बिकमिंग नर्वस. ओके, बिकमिंग नर्वस. सेंटेंस में अगर हम इसे यूज़ करें, सो it was her to speak on the stage and she was getting cold feet. मतलब she was speaking on the stage and she was feeling nervous. Okay, while speaking there, like one having this phobia of speaking, right? I don't know the special name, but it's just something called speaking phobia. Okay, so it's the one have speaking phobia on the stage. So if your friend feel very nervous on the stage, you could use this phrase that you're feeling, I think you are going on the stage, you will be a cold feet person. मतलब तुम तो cold feet person हो, तुम तो nervous होते हो, तुम स्टेज पर जा रहे हो, है ना. तो जब तक आप इसे डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे ना गाइस, यू विल नॉट लर्न दिस थिंग्स. यही आपका ईडियम्स का है, यही फ्रेजेस का है, यही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीज़, वर्ड मीनिंग जो होती हैं हमारी, वो सबका यही एक आप कह सकते हैं तरीका है कि आप इन्हें डेली लाइफ में यूज़ करें. जैसे कि पहला मैंने क्या बताया था, द फर्स्ट आई टोल्ड अंडर द वेदर. तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? दैट इल, समथिंग सिक, समथिंग रिलेटेड टू सिकनेस, है ना. गेटिंग कोल्ड या बिकमिंग इल. सो आपको मीनिंग पता चल गया. अब आप इसे फ्रेम करें अपने ही सेंटेंस में और अपने भाई बहनों को सुनाएं. बिकॉज अनलेस यू विल नॉट talk to them, you are not going to get this thing in your deeper mind. Okay, so make sure this is a bonus tip. इतने दिनों बाद आया तो एक बोनस टिप है आपके लिए ये. ठीक है, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इसे डेली लाइफ में यूज़ भी करना है. तभी आप इन 50 से 50
ईडियम्स एंड फ्रेजेस को याद रख पाएंगे, ठीक है। सो कोल्ड फीट का मतलब है बिकमिंग नर्वस। गाइज दीज आर वेरी सिंपल, जो हमने पढ़े थे ना अपने टाइम पे, दैट वर वेरी वास्ट एंड ब्रॉड। सो जो हमने कैसे याद किए होंगे, बहुत वास्ट और बहुत ब्रॉड होते थे, है ना, बहुत खतरनाक होते थे। ये तब भी मिल रहे हैं, कोल्ड फीट समझ आ रहा है कि हाँ कुछ नर्वसनेस की बात हो रही है ना। हम तो ऐसे ऐसे पढ़ते थे कि कुछ समझ ही नहीं आता था। एवरीथिंग फ्लाइज ऑन आर फ्रॉम आर हेड, ओके। कोल्ड फीट, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट गो टू द थर्ड, वेरी कॉमनली यूज, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज। मैंने कहा ना, ये वही हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज हुए हैं, जो आपने सुने हैं, है ना। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि भाई मैंने सुना नहीं है, ये क्या है, ये एप्पल ऑफ माई आई। दिस इज़ वेरी सिंपल, very easy, very frequently used, okay. No one can say that I didn't heard this phrase. This is very 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 frequently listened or heard phrase, right? Apple of my eye, you have learned, you have seen this phrase once in your story as well, which I covered last time, that is Aditi, right? So its meaning is used to refer someone who you are fond of। मतलब it is refers, मतलब ये तब यूज़ होता है जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, to whom you have the immense and enormous love, okay। So you use this thing, apple of my eye। सेंटेंस क्या है, तारा पड़ा was the apple of everyone's eye, right? यही तो एक सेंटेंस है, मैंने सिर्फ एक सेंटेंस चुराया है उससे, स्टोरी से। इससे आपको याद रहेगा एप्पल ऑफ माई आई का मतलब क्या होता है, द पर्सन टू हुम यू टच ऑल योर लव, ऑल योर प्रेजेंस, है ना। तो उसे हम कहते हैं एप्पल ऑफ माई आई। दैट यू कुड ऑल्सो से चिल्ड्रन आर द एप्पल ऑफ एवरी वंस, चिल्ड्रन आर द एप्पल ऑफ आई ऑफ देयर मदर, ओके। नेक्स्ट, fourth, set the record straight, okay। Now set the record straight, something that motivates you, that highlights you, है ना। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोटिवेट कर रहा है। तो set the record straight का मतलब क्या है, to clarify, मतलब क्लैरिफिकेशन दे देना कि भाई अपने बात को प्रूफ कर देना, अच्छी तरीके से साफ कर देना। जैसे कहते नहीं कि भाई मैंने अपनी चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है, इसे भूलना नहीं, है ना, बहुत साफ करके। सपोज यू go to a shop to buy something, okay, and there is too many people, there are a rush of people, right? There are rush of people. Now when it is your turn and the shopkeeper is becoming nervous, okay, he is becoming cold feeted, right? So what you will do, you will say ना कि भैया मैंने ये सारा सामान लिया है, ध्यान रखना ये मैंने इसके पैसे दिए, है ना। खुद ही सोचो, जब बहुत सारी भीड़ है एक दुकान पर और दुकानदार पागल हुआ जा रहा है कि किस किस को संभाले, तब आप जो हैं अपनी चीज़, अपना सामान लाते हैं, उनसे लेते हैं, और जो रुपए देते हैं, जब रुपए देने की बारी आती है, पेमेंट करने की बारी आती है, तो बहुत ध्यान से आप उन्हें बताते कि भैया देखिए ये मेरे हाथ में रुपए हैं और ये आपके हाथ में जा रहे हैं, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, अपना क्लैरिफिकेशन रखता हूँ, है ना। इससे क्या हुआ, क्लैरिफिकेशन हो गया कि हाँ भाई मैंने रुपए उन्हें दिए हैं, ओके। इससे आगे चल के वो ये नहीं कहेंगे कि अरे तुमने मुझे ये रुपए नहीं दिए, है ना। तो बहुत समझा कर जो बच्चा आता है कि भैया ये लो, ये सारे रुपए हैं इस चीज़ के, ध्यान से पकड़ना, है ना। तो वो मैंने क्या किया, आई सेट माई रिकॉर्ड स्ट्रेट, ओके। आई सेट माई रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब मैंने अपना हिसाब जो है, अपना जितना भी मैथमेटिक्स थी वो सारा क्लियर कर दिया, ठीक है, जितना भी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू क्लैरिफाई, मतलब टू लाइक मेक क्लियर, टू मेक थिंग्स क्रिस्टल क्लियर। सेंटेंस क्या होगा, इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, है ना। इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट द अंपायर चेक्ड द कैमरा टू रिव्यू द प्रीवियस शॉट, मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए एम्पायर ने कैमरे को चेक किया, ओके। इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब क्या है, टू क्लैरिफाई, टू मेक द क्लैरिफिकेशन कि अगला शॉट कहाँ तक गया, शायद वो मेज़र नहीं कर पाया होगा, है ना। तो इसलिए
कोई इशू ना हो, तो इसलिए उसने क्या किया, कैमरे को रिव्यू किया, जिससे कि वो अपना रिकॉर्ड है उसे स्ट्रेट कर पाए, मतलब टू क्लैरिफिकेशन दे पाए कि हाँ ये शॉट कैसे कैसे गया है. सो दिस सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, इट इज़ अ नेगेटिव ईडियम. एक नेगेटिव ईडियम है जो कि नेगेटिविटी के लिए यूज़ होता है. जब आपका कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप उसे प्रूव करने के लिए ये चीज़ करते हैं. ओके तो इधर भी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे. लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आई डू नॉट हैव अ क्रश ऑन यू साइमन. मतलब नाउ दिस रेड हेडेड गर्ल, okay, this red haired girl, she is saying to this person, to Simon, that let me clarify to you, मतलब मुझे क्लियर होने दो, मुझे स्पष्ट करने दो अपनी बात कि मुझे तुम पर कोई भी क्रश नहीं है, आई डोंट लव यू, है ना. तो ये क्या हुआ, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टू मेक योर, टू क्लैरिफाई, ओके, to clarify. Next, fifth one. Kill two birds with a stone. नाम से समझ आ रहा है, किल टू वर्ड्स विद अ स्टोन, मतलब दो चीज़ों को एक ही चीज़ से मार देना. कहते नहीं है दो निशानों से एक ही चीज़ को हमने मार दिया. हिंदी में देयर अ प्रोवर्ब है ना, हिंदी में भी प्रोवर्ब है, वही ये इंग्लिश में है. मतलब अचीव टू रिजल्ट्स बाय डूइंग वन थिंग, मतलब एक चीज़ करके दो रिजल्ट्स को अचीव कर लेना. ओके, एक पथ दो काज, है ना, सुना है ना हिंदी में, एक पथ दो काज, वही है ये किलिंग टू वर्ड्स विद अ स्टोन. वेरी सिंपल, राइट. सेंटेंस क्या होगा, नॉन ऑफ अस अंडरस्टूड दैट ही वॉज ट्राइंग टू किल टू वर्ड्स विद अ स्टोन व्हेन ही जॉइन द मिलिट्री फोर्स. मतलब कोई नहीं पहचान पाया, कोई नहीं समझ पाया कि जब वो मिलिट्री फोर्स में ज्वाइन हुआ था तो उसने क्या किया था, उसने दो मतलब अपनी एक सक्सेस से दो चीज़ें अचीव कर ली थी. ओके, अपनी एक सक्सेस से दो चीज़ें अचीव कर ली थी मिलिट्री फोर्स में. सो किल टू वर्ड्स विद अ स्टोन का मतलब यही होता है कि एक काम करके दो सक्सेस को अचीव कर लेना. ओके, अब जैसे सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस एज वेल. सपोज आपने पूजा रखी है और पंडित जी आ रहे हैं, ठीक है. पंडित जी आए नहीं हैं, जो आप जिनसे पूजा कराते हैं वो पंडित जी आए नहीं हैं, है ना. उनकी जगह पे वो पंडित जी आए नहीं हैं. और दूसरी चीज़, आपको कमल का फूल भी चाहिए. जस्ट टेक एन हाइपोथेटिकल लाइक थॉट, आपको एक कमल का फूल चाहिए उस पूजा के लिए, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड. और एक पंडित जी चाहिए, एक प्रीस्ट चाहिए जो कि आए नहीं हैं, है ना. आपके वाले प्रीस्ट आए नहीं हैं तो आप बहुत परेशान हैं. तो आपने देखा कि आपके रास्ते में से एक पंडित जी गुजर रहे हैं, ठीक है. एक पंडित जी गुजर रहे हैं तो आपने उन पंडित जी को बुला लिया, दूसरे पंडित जी को, और पूजा करवाई. और गलती से उनके बैग में जब आपने देखा तो उनके बैग में कमल का फूल भी रखा था. सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ किलिंग टू वर्ड्स विद अ स्टोन. मतलब आपको पंडित जी भी मिल गए और आपको कमल का फूल भी मिल गया अचानक से. सो दिस इज़ you have achieved two success by doing one thing, you have achieved two results by doing one thing, right. So this is what kill two words with a stone. I hope this is clear to you. Let's move to the sixth one, and sixth says snowed under. समझ आ रहा है इससे, क्या आप इससे समझ सकते हैं snowed under का मतलब क्या होगा, क्या आप इस इमेज से समझ सकते हैं स्नोड अंडर का मतलब क्या हो सकता है. जब एक पर्सन बहुत सारे हाथ कर और उन सारे हाथों में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ही माइट बी वेरी बिजी, राइट. सो दिस स्नोड अंडर का मतलब भी क्या होता है, द पर्सन हु इज़ वेरी बिजी, टू बी वेरी बिजी. ओके, सो स्नोड अंडर मीन्स टू बी बिजी. सेंटेंस क्या होगा, माई फादर सीम्स टू हैव बीन स्नोड अंडर फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स. मतलब जो मेरे फादर हैं वो कुछ हफ्तों से बहुत बिजी हैं. ही स्नोड अंडर फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, मतलब वो कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नोड अंडर. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ
To break someone's bubble, again an important one. To break someone's bubble, what does it say? To break someone's belief. Okay, to break someone belief. So meaning क्या है? To say or to do something that shows someone that their belief are false on that what they want to happen will not happen. Okay, now to break someone's bubble means मतलब कोई ऐसी चीज़ कहना या करना जिससे कि दूसरे को लगे, ओके, आपके सामने वाले को लगे कि जो बिलीव, उनका जो बिलीव था आप पर वो फॉल्स था, है ना. सपोज अभी सपोज मैकबेथ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकबेथ. नाउ एवरीवन नो, पीछे जाते हैं हम कुछ एक्ट 1 एक्ट 2 पे, एक्ट 1 सीन 1 और 2 पे जाते हैं, सीन 2 और 3 पे. किंग डंकन वॉज हैविंग अ वेरी हाई बिलीव, और इवन एवरी वन द स्कॉटलैंड वॉज हैविंग वेरी हाई बिलीव कि हमारा मैकबेथ बहुत ब्रेव है, वो ज़रूर मैकडॉनवॉल्ड से लड़ेगा. पर वो लड़ा तो, पर उसने आखिर में खुद ही गद्दारी कर ली, है ना. तो उनका जो बिलीव था मैकबेथ पर कि मैकबेथ जो है जो हमेशा हमारे अच्छे के लिए काम करता है, किंग डंकन का हमेशा भला सोचता है, वो बिलीव उनका टूट गया. सो दिस इज़ वॉट मैकबेथ हैज़ बस्ट द like Macbeth has burst Duncan's or everyone's bubble. Okay, Macbeth has burst Duncan's and everyone's bubble. So this is what to break someone's bubble. Okay, I hope you are clear with this thing. So sentence क्या होगा? I was so happy about marrying Maria Luisa. Okay, I was so happy about marrying Maria Luisa. I couldn't burst his bubble. मतलब ही वॉज सो हैप्पी, मतलब जो वो लड़का था वो बहुत खुश था मैरिया ल्यूसा से शादी करने के लिए. ओके, पर शायद मैरिया ल्यूसा ने मना कर दिया होगा परहैप्स, है ना. तो इसलिए जो दूसरा पर्सन है वो कह रहा है कि मैं उस लड़के का बिलीव तोड़ना नहीं चाहता. ओके, आई कुडंट बर्स्ट हिज बबल, मतलब मैं नहीं तोड़ सकता उसका बिलीव. Okay, I hope this thing is clear to you, or you could learn the example of Macbeth, a great Macbeth. Okay, eighth one, very important and highly used, very frequently used, what phrase? Okay, hit the hay. Hit the hay means to sleep. Okay, to go to one's bed in order to sleep. Okay, मतलब sleep, सोने के लिए hit the hay used. So sentence could be, it's being a great evening but I'm ready to hit the hay. मतलब the last evening was very exciting and very great, but still I am ready to sleep on the bed. Okay, so this is hit the hay, मतलब to sleep, to go on the bed. I hope eighth one is also clear to you. Let's go to your ninth one. अभी मैंने बताया था hold your horses का मतलब to wait or to have patience. Okay, इसका मतलब ही क्या होगा? To wait or to have patience. Sorry, hold your horses का मतलब क्या होगा? To be patient or wait. Sentence क्या होगा? Hold your horses, sir. Can't you see that we haven't finished here? मतलब क्या आप वेट नहीं कर सकते थोड़ी देर? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमने अभी तक ख़त्म नहीं किया है? जैसे कि आप जाते हैं बैंक्स में लगी होती हैं लंबी लंबी लाइंस. सो इफ़ समवन इज सेइंग जल्दी करो, यू कुड यूज़ दिस फ्रेज, होल्ड योर हॉर्सेस सर, कांट यू सी वी आर ऑन द लाइन. ओके, कांट यू सी वी आर वेरी बिजी, सो यू कुड यूज़ ओवर देयर. ओके, टेंथ वन इज नक as a bug in a rug. Very interesting, right? I love this. Snug as a bug in a rug. It means you are feeling very warm and very cozy under the blanket. Okay, so meaning warm and cozy. Sentence could be, yesterday the night was snug as a bug in a rug. Means yesterday's night was very warm and very cozy. We have slept in a very soft and supple bed. 11th, highly used. You all know, I think, butterflies in the stomach. Butterflies in the stomach means you are feeling very nervous. You are feeling little nervous. Okay, so meaning could be
feeling nervous. Okay, sentence could be today I am to appear in an interview. I have lots of butterflies in my stomach. Means today I'm having an interview and I'm very nervous. I'm feeling very nervous that which types of questions will they ask. Seventh, once in a blue moon. In Hindi, we used to say Eid ka chand. That's the same thing. Okay, Eid ka chand or once in a blue moon. It's been very rare. Okay, that the person who never sees, who sees occasionally or very rarely. So the sentence could be that company puts on a good performance only once in a blue moon. Means that company he bring these good performance just very rarely. Okay, once in a blue moon means very rarely the company brought these types of interesting and highly motivated performance. So once in a blue moon means very rare, or in Hindi we say Eid ka chand, right? 13, as cool as a cucumber. As cool as a cucumber. By the picture you could see the person is very calm and very healthy, without any worries, without any tension, without any pressure. Okay, so the meaning could be to be very calm. Okay, to be very calm with no worries and pressure. Sentence could be I'm furious but Mike was as cool as a cucumber. मतलब मैं तो गुस्से में था, मैं तो बहुत गुस्से में था, पर जो माइक था उसे कोई टेंशन नहीं थी. He was as cool as a cucumber. Okay. Okay. Next, let the cat out of the bag. Very frequently asked, आप सबको पता होगा. Let the cat out of the bag का मतलब है किसी भी सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, किसी भी सीक्रेट को बता देना, है ना. सपोज आपने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताया और मुझसे कहा कि किसी को मत बताना प्लीज़, किसी को मत बताना, और सपोज मैंने दूसरे दिन ही किसी को बता दिया और वो बात सब में फैल गई, तो तब आप मुझसे क्या कहेंगे, वाई यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. सो इट मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट बाई मिस्टेक, मतलब बाई मिस्टेक यू हैव रिवील्ड अ सीक्रेट. Okay, sentence could be I'm planning a surprise holiday for Rose to celebrate our wedding anniversary. Don't let the cat out of the bag. मतलब मैं रोज़ के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ हमारे आने वाली एनिवर्सरी के लिए. प्लीज़ ये कोई सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करेगा. प्लीज़ डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स कोई भी इस सीक्रेट को डिस्क्लोज या अनक्लोज नहीं करेगा. Okay, I hope this thing is clear to you. 15, very ओहो सबसे सिंपल यही है ना. Don't judge a book by its cover. I'm bringing because these are your CBSE or competitive exams like idioms. Okay, don't judge a book by its cover. Suppose by this image, okay, by this image you could see here this girl and this person. Okay, this person is seem to be a very, might be he is seen to be a very noble person, but his shadow shows the truth, right? He is a devil in a disguised manner of a man. So here he has said that don't judge a book by its cover means you should never make a judgment by seeing his outer appearance. Okay, you shouldn't make judgments based on appearance, same as I have said. Okay, so you shouldn't make judgments on based on the appearance. Okay, so I sentences का क्या होगा, I know he looks scary but my dog is really gentle. You can't judge a book by its cover. Suppose you are finding someone's dog very scary and very innocent. He could opposite of this. He could opposite. He might be very scary. He might be very gentle. So here he is saying that आपको मेरा डॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है ना, बट ऐसा नहीं है. He is very gentle and calm. Please don't judge a book by its cover.
ओके ये तो बहुत सिंपल है, आपने सुना होगा दैट आउटर अपीयरेंस से कभी भी आप नहीं बता सकते कि द पर्सन इज व्हाट इज द कैरेक्टर्स, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन. ओके so let's move to the 16th one. 16th one saying by the stick of your teeth. By the stick of your teeth means, खुद ही सोचिए क्या मतलब हो सकता है. बाय द स्किन, सॉरी, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब है with the very smallest time you are doing something. Suppose इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. सपोज देयर इज़ अ बॉम्ब आपके घर में, सॉरी नॉट इन योर होम, आपके कहीं भी आपके पास में एक बॉम्ब फिट कर दिया गया है. ओके एंड देयर आर 50 seconds left. Okay, there are 50 seconds left only फॉर द वर्स्ट ऑफ दिस बॉम्ब के फटने 50 सेकेंड्स रह गए हैं. तब भी आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बॉम्ब सीज़ हो जाए, कैसे भी ये बॉम्ब सीज़ हो जाए, कैसे भी ये बंद हो जाए. सो दैट विल बी बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. ओके सो बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे यू आर डूइंग समथिंग. ओके सेंटेंस क्या होगा? रॉबिन caught the train by the skin of her teeth. It left a few seconds later. मीन्स जो ट्रेन है वो कुछ सेकंड पहले ही चली गई थी, पर फिर भी रॉबिन ने ट्रेन को पकड़ लिया बहुत जल्दी से, एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए. आप खुद ही सोचिए ट्रेन चल रही है एंड देयर यू कॉट अ ट्रेन इमीडिएटली. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, राइट. मतलब बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स में आपने कोई काम को कर दिया. दैट इज़ बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. ओके विद द रैपिड सेकेंड्स. 17 eating a horse. Oh my god, very highly listen, highly used, very frequently used. Eating a horse means you are starving, you are famished, you are very 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 hungry. Meaning starving means very hungry. Sentence could be after fasting for 9 days I could eat a horse now. मतलब after having the fast for 9 days I am starving, I am very 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 much hungry that I could eat a horse. Eating a horse का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं. ठीक है. 18 का क्या होगा? Finding a needle in a haystack. Very common है ना. आप खुद ही सोचिए क्या हो सकता है. फाइंडिंग अ needle in a haystack, समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल. या हाउ कुड यू, आप शब्दों से समझिए ना. हाउ कुड यू फाइंड अ needle in a haystack. बड़े से आप कह सकते हैं हेस्टिक्स में. हेस्टिक्स का मतलब क्या होता है? जो आपके भूसा वगैरह होता है ना, हिंदी में आई डोंट नो, यू हैव लिसन और द फूड. ओके द मिक्सचर ऑफ बफलोज एंड काउ विच दे यूज टू ईट, that is known as the haystack. Sorry. Okay, so find a needle in a haystack means you are finding something, okay, in a very big thing. Okay, suppose you have lost a diamond ring in a big mall, in a very big mall, very very big mall, and you are finding that everywhere. So that is equal to the finding of a needle in a haystack. दैट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू फाइंड. मतलब ऐसी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं जो बहुत इम्पॉसिबल हो. ओके सेंटेंस क्या हो सकता है? ट्राइंग टू गेट अ न्यू जॉब दीज डेज इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड अ नीडल इन अ हेयरस्टाइल. मतलब आजकल तो नई जॉब लेना भी ऐसा हो गया है जैसे कि हम मतलब आजकल नई जॉब लेना भी बहुत इम्पॉसिबल है. कि इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू टेक द न्यू जॉब्स राइट नाउ. ओके आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ. ट्राइंग टू गेट अ न्यू जॉब दिस डे इज़ लाइक ट्राइंग टू फाइंड अ नीडल इन अ हेयरस्टाइल. मतलब आजकल जॉब्स लेना भी इम्पॉसिबल के समान ही हो गया है, नियरली इम्पॉसिबल हो गया है. ओके सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा. काफ़ी हार्ड नहीं है, इट्स एन ईजी वन. ओके 19 क्या है? ओ माय गॉड वेरी इंटरेस्टिंग राइट. स्टिक योर नोज इनटू समथिंग. है ना, आजकल की आंटीज़ में ये कैरेक्टर्स बहुत देखे गए हैं कि वो दूसरों के मामले में टांग घुसाती हैं. है ना, तो वही है इसका मतलब स्टिक योर नोज इनटू समवन. मतलब दूसरे के मामलों में टांग घुसाना, दूसरे की चीज़ों में, दूसरे की बातों में इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना.
ओके, टू इंटरफेयर, द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज टू इंटरफेयर. सेंटेंस क्या है? अर्जुन ऑलवेज चेक हिज नोज इन टू माई लाइफ. यहाँ एक लेडी का नाम होना चाहिए था वैसे, है ना. अर्जुन जो है, ही ऑलवेज इंटरफेयर इन माई लाइफ, इन टू माई लाइफ. ही ऑलवेज लाइक इंटरप्ट मी इन टू माई लाइफ, है ना. तो इसका हिंदी में मतलब अगर मैं बताऊँ तो क्या होगा? टांग घुसाना. वो लोग जो हमेशा टांग अपनी अड़ाते रहते हैं, है ना. सो don't go on this image will not tell you the exact meaning. The exact meaning is to interfere, to interrupt. Okay, I hope you're clear with this thing. Let's move to the 21. On cloud 9, very like easy. On cloud 9 का मतलब क्या होता है? The person who is extremely happy and jovial. He is in a very joyful and in a very gleeful mind. So meaning is very happy, है ना. सेंटेंस क्या होगा? आफ्टर हेयरिंग हर सिलेक्शन, पीयूष, सॉरी, आफ्टर हेयरिंग हिज होगा यहाँ पर. ओके, आफ्टर हेयरिंग हिज सिलेक्शन, पीयूष वॉज ऑन क्लाउड 9. मतलब अपना सिलेक्शन सुनने के बाद पीयूष जो है, ही वॉज ऑन क्लाउड 9. ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. ओके, ऑब्वियसली अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो वो बहुत खुश होगा, सीधी सी बात है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट इन आर्म एंड अ लैग. वेरी लाइक कॉमन, कॉस्ट इन आर्म ऑफ एंड अ लैग. ओके, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक. ओके, सो मीनिंग वेरी एक्सपेंसिव. देखिए मैं बहुत सिंपल सी मीनिंग लाया हूँ जो आपको समझ आ सके. ओके, सो मीनिंग क्या होगा? टू expensive, sorry, very expensive, the thing, the object which is very expensive that you cannot afford to take. Sentence क्या होगा? The apparels were cost an arm and a leg in the mall. मतलब the clothes, apparels का मतलब क्या होता है? कपड़े, clothes. The clothes were very expensive that I could not afford them. Okay, next, fit as a fiddle. Very interesting and highly used. फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है? इन अ वेरी गुड और इन अ वेरी गुड हेल्थ. सेंटेंस, लिंडा इज नाउ फिट एज अ फिडल. मतलब लिंडा इज इन अ वेरी गुड हेल्थ. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, फिट एज अ फिडल. क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. ओके, अब नाउ डोंट गो ऑन द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. मतलब दूध गिर गया तो रो रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है. इसका मतलब ये होता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. वही वाला जो होता है ना, हिंदी में हम कहते हैं, तो उसी का यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है. मतलब जो चीज़ पहले से आपने गलत कर दी है, अब उसके ऊपर शोक करना, अब उसके ऊपर सॉरो एक्सप्रेस करना बेवकूफ़ी है. ओके, टू एक्सप्रेस सॉरो ऑन समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी डन. ओके, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. इट इज़ द हिंदी वर्जन. सेंटेंस क्या होगा? आई नो यू डिडेंट मीन टू ब्रेक माई फोन, सो देयर इज़ नो यूज इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. मतलब मुझे पता है योर इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग अबाउट माई फोन, सो प्लीज़ डोंट क्राई आफ्टर डूइंग दिस. क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. मतलब जो काम तुमने अब कर दिया है उसके ऊपर अब रोना बेकार है. ओके, सो डोंट क्राई. 24, अगेंस्ट द क्लॉक. अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या होगा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ? जैसे कि हमारा पहले वाला था, जैसे आपका स्नोड अंडर था ना, बिल्कुल वैसा ही अगेंस्ट द क्लॉक है. मतलब बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपको बहुत जल्दी आपको कुछ भी चीज़ फिनिश करनी है लिमिटेड टाइम में. मतलब आपको एक लिमिटेड टाइम दिया है. सपोज आपको 20 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं 2 दिन में, 20 projects. So that is what? Against the clock. You have to go against the clock. Okay, so meaning क्या होगा? Do it as fast as possible and try to finish it before a certain time. मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस काम को फिनिश करना in a limited time, in a mentioned time. Sentence क्या होगा? Hurry up, we are working against the clock here. मतलब जल्दी चलो, जल्दी करो, हमें बहुत जल्दी काम करना है. ठीक है, सो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब यू हैव टू गो अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब यू हैव टू गो फास्टर देन क्लॉक. नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हाईली यूज्ड. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब
अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, मतलब एक अच्छी चीज़ जो पहले तो बहुत बुरी दिखती है। जैसे कि आजकल के पेरेंट्स जब पेरेंट्स कोई भी एडवाइस दे रहे होते हैं, बेटा ऐसा मत करो या आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज योर पेरेंट्स नो यू मोर देन यू, द पेरेंट्स नो मोर देन यू, they know you more than you, and whatever they will say it will be in your own merit. Okay, सो अगर आपके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि बेटा यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये आपके लिए सही नहीं है, सो यू गो अगेंस्ट दैम कि नहीं ये तो अच्छा है। फिर आपको जब अपने आप पता चलता है ना कि अरे ये गलत था, तब आपको लगता है कि अब माई पेरेंट्स वर राइट। ओके, एंड दिस थिंग इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब एक अच्छी चीज़ जो पहले तो आपको बुरी दिख रही थी पर लास्ट में उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे थे, अच्छे। ओके, तो यू कुड से दैट माई पेरेंट्स वर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, माई पेरेंट्स एडवाइस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, क्योंकि उनकी एडवाइस आपके लिए तो सही थी ना, पर आपने उसे गलत लिया। सो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, मतलब एक अच्छी चीज़ जो पहले तो कैसी दिखती है, ख़राब दिखती है। ओके, और उस बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, बाद में उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फ्रूटफुल होते हैं। सेंटेंस क्या होगा, माई कार ब्रोक डाउन अगेन बट मे बी इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई हैव बीन वेस्टिंग टू मच टाइम ड्राइविंग अराउंड एवरीवेयर, मतलब मेरी जो कार है वो टूट चुकी है, मेरी कार दोबारा टूट गई, पर शायद ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, भले ही हुआ बुरा है पर शायद इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे हों, क्योंकि मैं अपना ज़्यादातर टाइम वेस्ट करता था ड्राइविंग में। ओके, तो कार जब टूट गई है तो अब कहीं जाने आने का टाइम सवाल ही नहीं उठता। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज्ड, हाईली यूज्ड, नो पेन नो गेन, है ना। नो पेन नो गेन, मतलब अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए, अगर आपको जो आप चाहते हैं वो आपको चाहिए, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। सपोज यू हैव सेट दैट मुझे 12th में 90+ मार्क्स चाहिए, तो ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे, सोते सोते, हंसते हंसते, खेलते खेलते, ऐसे ही तो नहीं मार्क्स आने वाले। आपको 90+ मार्क्स चाहिए तो आपके लिए उससे क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अनलेस यू विल नॉट फील द पेन देयर विल बी नो गेन, राइट। सो नो पेन नो गेन, जब तक आप पेन फील नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इडियम इज़ फॉर यू चिल्ड्रन, राइट। सेंटेंस क्या होगा, आई हैव स्टडीड 4 hours फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम बट नो पेन नो गेन, मतलब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ रहा हूँ, घंटों तक पढ़ रहा हूँ, पर जब तक मैं खुद से अपनी मेहनत नहीं करूँगा, ओके, जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा तब तक मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तब तक मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। ओके, सो मेक श्योर नो पेन नो गेन। सिक्स्थ, पुल समवन्स लेग, ओहो ये तो बहुत सुना है ना। पुल समवन्स लेग का मतलब बिल्कुल इस पर मत जाइएगा कि किसी की टांग खींच लिए, नहीं, इसका मतलब होता है किसी से मजाक करना। ओके, टू जोक विद समवन, ओके, किसी के संग मजाक करना। सेंटेंस क्या होगा, रोहित इज़ वेरी नोटोरियस बॉय, ही पुल्स एवरीवन्स लेग, मतलब रोहित इज़ वेरी नॉटी बॉय, ही इज़ वेरी नोटोरियस, ही पुल्स समवन एवरीवन्स लेग, मतलब वो सबके संग मजाक करता है। सो पुल समवन्स लेग का मतलब है किसी के संग बहुत ज़्यादा मजाक करना। 28 क्या है, दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि नाउ यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ काम, नाउ यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ काम, नाउ द बबल ऑफ योर पेशेंट विल बस्ट सून, है ना। सो पेशेंट हैज़ रन आउट, नाउ यू डोंट हैव एनी मोर पेशेंट, अब आपको गुस्सा आ गई है तो आ गई है। तो सेंटेंस क्या होगा, माई फ्रेंड वॉज यूजिंग बर्गर लैंग्वेज अबाउट माई फैमिली, नाउ दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब मेरा फ्रेंड बहुत गंदी गंदी भाषा बोल रहा था मेरी फैमिली के बारे में, नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट, ओके, आई कैन नॉट टॉलरेट, आइदर आई विल बीट हिम और आई विल टॉक टू हिज फैमिली। 29 क्या है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, very frequently used, right, means don't count your chickens before they hatch, right। इसका मतलब क्या होता है,
जब तक कोई काम हो नहीं जाता तब तक आपको उसके बारे में नहीं कुछ अच्छा सोचना चाहिए, राइट। सपोज आप एक एग्ज़ाम देकर आए, सपोज अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो नीट का एग्ज़ाम लेकर आए, आपको पूरा पता है कि आपको आपके 720 में से 700 प्लस तो आ ही जाएंगे, है ना। तो पहले से सबको मत बताओ कि मेरे 700 आएंगे, लो मिठाई लो मिठाई लो मिठाई लो, है ना। जब तक रिजल्ट नहीं देख लेते तब तक ऐसा मत करो। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब जब तक रिजल्ट जो है नीट का वो आ नहीं जाता तब तक आप मिठाइयाँ मत बांटते फिरो। क्या पता रिजल्ट में कैसे नंबर्स आए, जैसा अभी देख लीजिए आप, है ना, कितने सारे बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं सेम कॉलेज से। नाउ आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट टॉपिक। सो मीनिंग क्या होगा, डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट्स हैपन, मतलब जब तक कोई चीज़ अच्छी हो नहीं जाती तब तक आप उसका प्रचार मत करते फिरो। सही है। सेंटेंस क्या होगा इसका, She wanted to buy a dress in case someone asked her to the dance, but I told her not to count her chickens before they hatch। मतलब देखो, किसी ने कहा था कि आप मेरे साथ डांस करेंगी तो एक ड्रेस अच्छी सी ले लीजिए, तो उसने ड्रेस ले ली। अब बाद में पता चला कि उसे इनवाइट ही नहीं किया गया है। सो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, मतलब जब तक आपको पूरी बात पता ना चल जाए तब तक आप उसका प्रचार करते मत फिरो, तब तक आप उसका अनाउंसमेंट करते नहीं फिरो, है ना। 30 क्या होगा, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, है ना। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर बुरी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ उसका अच्छा रिजल्ट, कुछ ना कुछ उसका अच्छी चीज़ होती है ना। जैसे कि गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग, मतलब जैसे कहते नहीं है कि बुरे दिनों के बाद हमारे अच्छे दिन भी आते हैं, चिंता मत करो तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, है ना। ये स्लोगन चला था ना, अच्छे दिन आएंगे, when the Modi Sarkar was going on, right? Now also he is going on, but ये कहा था ना कि अच्छे दिन आएंगे। so that is every cloud has a silver lining, मतलब हर क्लाउड में there is a silver lining, मतलब हर बुरे दिनों के बाद कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। so good things come after bad things, मतलब बुरी चीज़ों के बाद अच्छी चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या होगा, although I didn't get accepted into my dream college, every cloud has a silver lining because it led me to discover another school that was a better fit for me। मतलब although मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, पर मुझे एक ऐसा कॉलेज मिला जो शायद मेरे ड्रीम कॉलेज से भी बहुत अच्छा हो सकता था। ओके, सो दैट इज़ वॉट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब मेरे बुरे दिनों जब मुझे पता चला कि मेरे ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर जब मैं अपने नए कॉलेज में गया या गई तो मुझे वो कॉलेज अपने ड्रीम कॉलेज से भी अच्छा लगा। सो दैट इज़ वॉट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, राइट। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ओ माई गॉड, ये तो बहुत सुना है ना। इसका मतलब क्या होता है, रेनिंग हार्ड और हैवी रेनिंग, है ना। इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, सेंटेंस क्या होगा, वी कांट गो आउट सिंस इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि देयर इज हैवी रेनिंग, बहुत हैवी रेनिंग हो रही है। ओके, यू कुड विजिट ओवर देयर एज वेल। सो दिस यू कुड से कैट्स एंड डॉग्स टाइप्स ऑफ रेनिंग, कैट्स एंड डॉग्स टाइप्स ऑफ रेनिंग। ओके, नेक्स्ट, द अर्ली वर्ड गेट्स द बॉम्ब। नाम से ही समझ आ रहा है कि जो पहले आएगा उसे ही सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी। ओके, उसे ही सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी। अच्छा, अब जस्ट सपोज ओके, लेट्स टेक अ कंडीशन एज वेल। एक पर्सन है, वो आप मैंगोज़ बांट रहा है, लोगों को मैंगोज़ बांट रहा है, ठीक है। अब सब लोगों को ऊपर के मैंगोज़ मिले जो कि काफ़ी फ्रेश और काफ़ी जूसी थी। ओके, आप गए लास्ट में, तो आपको नीचे ऑब्वियसली नीचे का मैंगो मिलेगा क्योंकि मैंगो अब ऊपर वाले सब खत्म हो चुके हैं, अब नीचे के बचे। तो नीचे का मैंगो कैसा होगा, बहुत पल्पी होगा, मतलब दबा होगा, बहुत ज़्यादा बेकार सा होगा क्योंकि वो दब के बेकार हो गया होगा। सो जो पहले आएगा उसे ही सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी। जो पर्सन पहले आया होगा उसे ही तो सबसे ऊपर का मैंगो मिला होगा। दैट विल बी वेरी फ्रेश एंड जूसी एंड वेरी वेरी लाइक स्वीट, राइट। सो यही चीज़ है, दैट अर्ली वर्ल्ड विल गेट्स द राइट बॉम्ब, मतलब द अर्ली वर्ल्ड गेट्स द बॉम्ब। जो सुबह सुबह आएगा वर्ल्ड उसे ही अच्छी चीज़ मिलेगी, मतलब जो पहले आएगा उसे ही सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी।
ओके, सो द फर्स्ट पीपल विल हु अराइव विल गेट द बेस्ट स्टफ. जो सबसे पहले पर्सन आएगा उसे ही सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी. सेंटेंस क्या होगा? ड्यूरिंग द सेल्स द शॉप ओपन एट 7 AM एंड द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म. मतलब कि सेल के समय पे दुकान जो है वो 7 बजे ही खुल जाती हैं, तो जो 7 बजे ही आ जाएगा, समझ रहे हैं, जो पहले आ जाएगा उसे ही सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी. बात तो फिर वो छटी हुई रह जाती है चीज़ें, आप सबको पता है ना. 33 highly used, very recommended, hard nut to crack. Hard nut to crack means a very difficult problem through which you deal with. Okay, a difficult problem to deal with. Sentence क्या होगा? This assignment is a hard nut to crack means this assignment is very hard. It is a very difficult to deal with. Next, there are other fish in a sea. There are other fish in a sea means it's okay to miss this opportunity, other will arise. है ना. मतलब there are other fish in a sea, मतलब अगर एक मछली चली गई तो it's okay, there will be other fish. और भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. अगर एक अपॉर्चुनिटी चली गई है तो उससे हमें रोना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए. अदर विल अराइज वेरी सून. सेंटेंस, इट्स ओके इफ़ यू कांट क्रैक UPSC. There are other fish in the sea. मतलब it's okay if you can't crack UPSC exam. There will be another more important and interesting competitive exams through which you could go. 35 calm before the storm. कहते नहीं हिंदी में ये तूफान से पहले की शांति है. सेम ये वही है ना. इट इज़ समथिंग बैड इज कमिंग बट राइट नाउ इट्स काम. मतलब कुछ बुरा होने से पहले की शांति है ना. सिंपल वही ये है कि कुछ खतरनाक होने वाला है उससे पहले सब एवरीथिंग इज़ वेरी काम एंड कोजी. सो समथिंग बैड इज़ कमिंग बट राइट नाउ इट इज़ काम. मतलब कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है पर अभी सब चीज़ें शांत हैं. सेंटेंस इसका क्या हो सकता है? द करंट वेव हैज़ नॉट रिटर्न्ड येट. मे बी सुनामी इज अबाउट टू अराइव. दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म, बिफोर द सी. Sorry, before the storm. Okay, this is the calm before the storm. मतलब जो करंट वेव्स हैं, जो करंट वेव्स हैं, करंट वेव्स का मतलब है जो पानी की लहरें हैं. ओके, करंट्स की लहरें हैं वो अभी तक नहीं आई हैं. हो सकता है सुनामी आने वाली है. इट माइट बी द काम बिफोर द स्टॉर्म. मतलब ये तूफान से पहले की शांति होगी, ये सुनामी से पहले की शांति होगी. Okay, I hope this is clear to you and this is an important one. 36, very important, again an important one. Born with a silver spoon. कहते नहीं you have born with a silver spoon. मतलब that a person which is very auspicious. Okay, very auspicious who has come in a very rich family. So born with a silver spoon का मतलब ही क्या है? Rich in a very born in a very rich family. ओके, सेंटेंस क्या होगा? एडम इज़ वेरी हॉटी बिकॉज ही हैज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. मतलब एडम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही इज़ एरोगेंट. हॉटी का मतलब क्या होता है? एरोगेंट, बहुत घमंडी, प्राइडफुल. ओके, ही इज़ वेरी प्राइडफुल बिकॉज ही हैज़ बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली. Okay, because he has born with a silver spoon. मतलब very rich. He has born with a very rich family. Okay, bad apple. Now don't go on this image. Bad apple. Okay, bad apple का मतलब होता है the person who is not fit for you guys. Okay, suppose आपको 4-5 लोगों का ग्रुप है, आप सब फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से एक फ्रेंड ऐसा होगा जो which will be not fit for you, which will be very noxious, very toxic for you. So that is a bad apple for you. ओके, सो ट्रबल मेक अ पर्सन इन अ ग्रुप. जैसे कि मैंने कहा देयर इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज क्रिएट अ ट्रबल, हु ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ. दैट इज़ अ बैड एप्पल. सो आपको उस बैड एप्पल को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए अपने ग्रुप से. सो सेंटेंस इज ही इज़ अ बैड एप्पल ऑलवेज स्पिल द सीक्रेट्स ऑफ आवर ग्रुप. ही इज़ अ वेरी टॉक्सिक पर्सन फॉर अस. Okay, he's a very troublemaker person for us because he always discloses all the secrets of our group. है ना. एक ऐसा होता है नहीं कि ग्रुप होता है और सारी सीक्रेट्स हम सब ग्रुप्स के बीच ही रहते हैं, तो उसमें से एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जो उस लाइक सीक्रेट को सारे स्कूल में, सारे क्लास में बता देता है. सो दैट इज़ अ बैड एप्पल फॉर अस.
Next is eat, breathe, and sleep something. Eat, breathe, and sleep something is you are very excited. Okay, you are that much excited that all the time you think about that thing. Okay, मतलब आप इतने एक्साइटेड हैं कि हमेशा हर वक्त वही आपके दिमाग में घूमता रहता है. सपोज आपको एक कार चाहिए, है ना, आपको एक कार चाहिए. सो यू विड बी सैड, यू ईट, ब्रीथ एंड स्लीप समथिंग. मतलब आप हमेशा उस कार के बारे में 24/7 आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं. तो इसका मतलब यही है, बीइंग सो एक्साइटेड दैट समथिंग that you all the time ponder about that. मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जो आप जिसके बारे में आप हमेशा 24/7 सोचते रहते हैं, है ना, आप उसे सोच के एक्साइट होते रहते हैं, है ना. सो सेंटेंस क्या होगा, आई लव माई पपी दैट आई ईट, ब्रीथ एंड स्लीप समथिंग. मतलब मुझे अपना पपी बहुत प्यारा है जिसकी उसे मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ या रहती हूँ. ओके, आई लव माई पपी. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन. ईट, ब्रीथ एंड स्लीप समथिंग का मतलब ही ये होता है कि आप हमेशा उसके बारे में सोच रहे हैं. फीलिंग ब्लू का मतलब होता है यू आर वेरी like depressed and you are very disconnected with the world. Okay, so feeling depressed and disconnected. So feeling blue very important. आप इसे याद रख सकते हैं, याद रखना है आपको. that you are feeling blue का मतलब क्या होता है, you are feeling depressed, okay, and disconnected. So sentence क्या होगा, result is about to come, I am feeling blue means the result is about to arrive. result आने वाला है and I am feeling very depressed and disconnected. Next, hot potato का मतलब क्या होता है, that एक ऐसी इमेज. हॉट पोटैटो हिंदी में इसका मतलब होता है आग की तरह खबर फैलना, है ना. जैसे कहते नहीं कि ये खबर तो आग की तरह फैल रही है, मतलब द न्यूज़ दैट इज spreading in a very milliseconds, that is spreading very rapidly, that is known as hot potato. Okay, so speak of a current issue which may people are talking about. मतलब उस current issue के बारे में बात चल रही है जिसके बारे में हर एक बंदा बात कर रहा हो. ओके, अब जैसे कि suppose in a kingdom there's a king. Okay, there's a king is about to nominate, a new king is about to nominate. So in the old kingdom there will be a hot potato. मतलब हर पूरी किंगडम में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी कि हमारे न्यू किंग कैसे होंगे, न्यू किंग कौन होंगे, ये वो है ना. सो दैट विल बी अ हॉट पोटैटो. ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर. ओके, so speak of a current issue which many people are talking about. Sentence क्या होगा, mysterious death of Sridevi was a hot potato in film industry. Yup, this could also be an example. For instance, Sridevi जी हमारे बीच नहीं रही. Okay, so at that time there was this news was a hot potato in the Bollywood industry कि किस तरीके से वो मतलब उनकी डेथ हो गई, कैसे क्या, है ना. तो दैट वॉज अ हॉट पोटैटो इन द फिल्म इंडस्ट्री. 41 इज itchy feet. Oh, that is very important and highly used, very frequently used. Itchy feet का मतलब है the person who is filled with wanderlust. Okay, जिसे घूमना पसंद हो, that is itchy feet. Strong impulse to travel outside means there's, या आप इसे कह सकते हैं द पर्सन हु इज फिल्ड विद wanderlust. ओके, दोनों का मतलब एक ही है. ओके, स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू ट्रैवल आउटसाइड मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको बाहर घूमने की. ओके, सेंटेंस क्या होगा, आई हैव एन इची फीट फॉर पेरिस. क्या, आई हैव एन इची फीट मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है घूमने की, पेरिस घूमने की. अब देखिए यहाँ पर इस मीनिंग का स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू ट्रैवल आउटसाइड, इसका और wanderlust दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलेगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू ट्रैवल आउटसाइड का मतलब कि आप एक पर्टिकुलर वे में एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए तड़प रहे हैं. जैसे कि पेरिस की बात हुई तो एक पर्टिकुलर जगह है ये. पर wanderlust का मतलब है आप हर जगह घूम सकते हैं. ओके, जैसे कि आप कह सकते हैं अ पर्सन हु इज़
traveling here and there, that is what a wanderlust. ओके, दैट इज फिल्ड विद wanderlust, मतलब उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं जाना है, उसे हर जगह जाना है, दुनिया की हर जगह घूमनी है ना, तो दैट इज wanderlust। पर यहाँ पर इची फीट का मतलब क्या हो जाएगा, एक पर्सन को एक ही पर्टिकुलर जगह पे जाना है, एक ही कांस्टेंट जगह पे बार बार घूमना है, ठीक है, बट यहाँ पर दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट, मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब है, समझ आ रहा है, मिस द बोट का मतलब क्या होगा, मिस द अपॉर्चुनिटी और मिस द चांस। ओके, टू मिस अ चांस और अपॉर्चुनिटी, तो सेंटेंस क्या होगा, आई हैव मिस द बोट फॉर हेड बॉय, मतलब मैंने हेड बॉय बनने की अपॉर्चुनिटी, मैंने हेड बॉय बनने का चांस खो दिया। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिस द बोट का मतलब क्या होता है, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। 43 is very important, please remember this thing as well. Time is a good healer. Yep, time is a good healer. By the passage of time, you forget everything. Okay, जैसे कि right now, not few year, 1 year back, it's about to become 1 year. Okay, 1 year back, my sister had died, my cousin sister. I think I have told you also. Okay, so with the passage of time, everyone start forgetting her. Okay, everyone start forgetting her, everyone busy in his own life, busy on their own life, right? So that is, time is a good healer. After the passage of time, everything you have to forget. Okay, so after passage of time, everything become normal. Yeah, sentence क्या होगा, with the passage of time our family disputes will finish, मतलब जो हमारे फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्प्यूट्स हुए हैं, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आवर फैमिली डिस्प्यूट विल फिनिश। ओके, या आप ऐसे लिख सकते हैं दैट टाइम इज़ अ गुड हीलर, लाइक आवर फैमिली डिस्प्यूट विल लाइक फिनिश बिकॉज टाइम इज़ अ गुड हीलर। ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Now 44, वेटिंग इन अ विंग्स। वेटिंग इन अ विंग्स का मतलब क्या होता है, वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एक्शन, मतलब एक्शन लेने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, जैसे कि मैकबेथ सही अपॉर्चुनिटी देख रहा था फॉर किलिंग किंग डंकन, तो ही वॉज वेटिंग इन द विंग्स। सो सेंटेंस क्या होगा, एनिमीज आर वेटिंग इन द विंग्स फॉर एन अटैक, मतलब अटैक के लिए जो दुश्मन है, दे वर वेटिंग इन द विंग्स। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, वॉकिंग आउट ऑन समवन। ओके, वॉकिंग आउट ऑन समवन का मतलब है टू लीव योर पार्टनर, ओके, और टू एंड अप द रिलेशनशिप, मतलब किसी के साथ आपने डाइवोर्स कर दिया है, डाइवोर्स तो नहीं कहेंगे, टू लीव अ पार्टनर, ओके, एंड टू एंड अप अ रिलेशनशिप। सेंटेंस क्या होगा, शी वॉक आउट ऑन हर नॉक्सियस रिलेशनशिप। ओके, सो शी वॉकड आउट फ्रॉम हर होगा यहाँ पर। ओके, फ्रॉम हर नॉक्सियस रिलेशनशिप। ओके, मैं अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से, अपने टॉक्सिक पार्टनर से बाहर निकल आई है। ओके, नाउ शी इज़ नॉट हैविंग एनी यू कुड से रिलेशन विद हर पार्टनर। 46, वाइट एज अ शीट। वाइट एज अ शीट का मतलब है इन अ स्टेट ऑफ वेरी मच फियर एंड एफर्ट, सो इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट फियर एंड एंजाइटी। ओके, सेंटेंस क्या होगा, रिया वॉज लाइक वाइट एज अ शीट इन द फॉरेस्ट एट नाइट, मतलब रिया वॉज वेरी like she was having a great fear and anxiety in the forest at night, so she was white as a sheet। yellow bellied का मतलब क्या होता है, coward मतलब the person who is not brave enough to fight with someone। coward मतलब बहुत ज़्यादा भीरू टाइप का पर्सन, ओके, जो किसी से लड़ ना सके, है ना। Sentence, John is a yellow-bellied boy in my class. So he is a very coward boy who cannot utter a word in front of his classmates. Next, the best of both worlds. The best of both worlds means you could enjoy
both the thing at the same time. You could enjoy both the opportunities, two different opportunities at the same time. So that is the best of both world. मतलब you can enjoy two different opportunities at the same time. Sentence: by working part time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get the best of both worlds. मतलब वो अपने बच्चों को भी संभाल रही है और अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है, दोनों को संभालते हुए शी इज़ वर्किंग एज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. मतलब वो दोनों चीज़ों को, दोनों सिचुएशंस को हैंडल कर रही है. ओके, नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, व्हेन pigs fly. Have you ever seen a pig flying? No, I never saw. But it is what? It is an idiom, okay, which means something that will never happen. Okay, that will never happen. So sentence would be when pig fly she'll tidy up her room. मतलब कौन सा ऐसा दिन होगा जब मैं इसका रूम साफ देखूंगी? When the pig will fly, जो कि कभी हो नहीं सकता, because she is very dirty, she keep her room very untidy and very toxic, right? So I hope this thing is also clear to you. This idiom is also clear to you. When pigs fly, मतलब the thing which will never happen. Okay, last idiom, yeah, to cut corners. To cut corners means to do something badly or cheaply. मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चीपली कर देना, आसानी से कर देना, बहुत बैडली, बुरी तरीके से कर देना. सो इसके लिए सेंटेंस क्या हो सकता है? दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बुल्ट दिस बाथरूम, द शार इज लीकिंग. मतलब उन्होंने शार को बहुत बुरी तरीके से लगाया, उन्होंने ये काम बहुत बुरी तरीके से किया है, बहुत चीपली किया है. ओके, क्योंकि जो शार है वो हमेशा टपकता रहता है, हमेशा लीक करता रहता है. सो दैट इज़ द टू कट कॉर्नर्स. उन्होंने क्या किया है? उन्होंने काम को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी से या चीपली बुरी तरीके से कर दिया है. ओके, सो दिस वॉज योर लास्ट ईडियम एंड विद दिस we are completed, we are done with our idioms. I hope the idioms and phrases are clear to you, and please tell me how they were. Okay, comment your own views कि कैसे थे idioms and phrases. I hope you guys love these idioms and phrases. If you love, don't forget to give this video a big thumbs up. Subscribe to the channel if you haven't do it yet, and press the bell icon. Bye guys, have a good day.